Hello everyone, welcome to my new series of SQL, and let's start with a chapter which is relational database concepts. So first of all, that question will come in our mind is what is database? Okay, so database is simply like a container. आप एक container ले लीजिए, ठीक है? And then in this container, what you have to put some digital data. Okay, so whenever there is a digital storage, okay, then that storage is known as database. Okay, so the next question is that what is relational database? Fine. Okay, the container is same again. This is the same container. Now in this time, the data that we are going to put into this container, that will be in the form of table. Okay, whenever the data is in the form of table, then such a storage is known as relational database. Okay, so you can see I have put one table here जिनके columns हैं name, age, marks, class. Okay, then I have put some entries also like प्यारे लाल. It's a very modern name, trust me guys. So इनकी जो age है that I have filled 150 years. Modern है ना, अभी के टाइम का थोड़ी है ये. Then निराले लाल again. So इनकी age 175 ही हो सकती है approx, right? Then पीले लाल, नीले लाल, all lals. So I have just filled these names by keeping in my mind like this modernity, and then the age I have given like this. Okay, so this is a table. Okay, whenever the data is in the form of table, then such storage, such database is called as relational database. Okay, now you can see a picture here. What this picture is about. So this blue box denotes a database. Okay, you can simply relate it as a society. It is a society where these blocks are formed. These are the buildings. 1, 2, 3. These all are the buildings. And this blue one, the blue one which is surrounded by this black outline is a database. ठीक है? So suppose आपकी एक society है blue color की, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे blocks बने हुए हैं. So that blue society will be called as database. Now the question is कि उस database में क्या है? Relational database. I'm talking about, अब जब SQL की बात होगी तो सब सिर्फ relational database की ही बात होगी. Okay? So वो जो relational database है उसमें क्या है? So ये क्या लिखा है? Student, courses, teacher. What it is this all about? So basically guys, this student is a table. ठीक है, एक टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट, और उसमें उसकी उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन फिल हो सकती थी वो फिल्ड है, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ टेबल. देन कोर्सेज, इट इज ऑल्सो अ टेबल जिसका नाम है कोर्सेज. कोर्स में क्या क्या हो सकते हैं कॉलम? कोर्स का कोड हो सकता है, नेम हो सकता है, फीस हो सकती है, व्हाटएवर. ठीक है, सिमिलरली देयर आर मेनी मोर टेबल्स यू कैन सी. ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट ये टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं. Okay, these tables are connected with each other. So एक point होता है जिससे ये table हम connect कर पाते हैं. Okay, so as of now you can consider that point as a key. Okay, एक table है student की, एक table है course की. अब ये दोनों table आपस में कहीं ना कहीं से connect कर रही हैं. इनका कुछ relation है आपस में. ठीक है, वो relation किस entry से हम identify करेंगे? That is called as key. ठीक है, अदरवाइज तुम अपने रास्ते हमें क्या, तुम किसी भी डेटाबेस में जाओ हमें क्या. अगर तुम दोनों टेबल एक ही डेटाबेस में हो, इसका मतलब आप दोनों में कुछ तो रिलेशन है, और वो रिलेशन हमें जिस चीज से, जिस मेथड से, जिस की से पता चल रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज की. ओके, इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे. सो दिस इज सिंपली अ पिक्चर ऑफ database. Okay, I have tried to bring a one simple picture of database, right? So you can see it is written here foreign keys and keys बनी भी हुई हैं. So इन keys का यही मतलब है कि ये tables आपस में एक दूसरे को connect कर पा रही हैं. ठीक है, अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं आगे. Okay, now relational database क्या है? अगर हमको definition इसकी पता करनी हो तो it is a type of database where data is stored in the form of tables like a spreadsheet. अगर कभी आपने Excel देखा हो तो it's just like that. And the relationship between the data are defined by key. Okay, now suppose this is a table. अब इस टेबल में मैं आप लोगों से रिलेटेड कुछ एंट्रीज डालती हूँ. ठीक है, ये सपोज आपके फैमिली की टेबल है. ओके, इट इज अ टेबल ऑफ योर फैमिली. इसमें क्या क्या कॉलम्स गिवन हैं? तो कॉलम्स आर गिवन एज आधार नंबर. आपके घर में सपोज टोटल 10 मेंबर्स हैं. ठीक है, सो सबके अपने इंडिविजुअल आधार नंबर्स होंगे कि किसी का मैच भी करता है, नहीं करता है, राइट? तो सबके अपने अपने आधार नंबर है. सब लोगों का एड्रेस है. कोई कहीं जॉब कर रहा होगा तो हो सकता है उनका एड्रेस कुछ और हो. ठीक है, सो उनके सबके अपने एड्रेसेस होंगे.
और क्या होगा उनके पास एज होगी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एज होगी. सो दिस इज इट फॉर दिस टेबल फैमिली. ओके, इनके पास आधार नंबर है, एड्रेस है और एज है. फाइन. नाउ एक और टेबल हम ले लेते हैं, ठीक है. ये टेबल भी रिलेशन रखती है आपकी फैमिली के साथ ही, लेकिन इस टेबल में हम जो कॉलम्स लेंगे दैट कॉलम्स विल बी पासपोर्ट नंबर. ठीक है, सबके अपने अपने पासपोर्ट्स हैं. अगर पासपोर्ट नहीं लेते हैं तो लेट्स टेक पैन नंबर. सबके पास अपने पैन नंबर्स होंगे, ठीक है. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, ऑल आर अडल्ट्स. ओके, नो चाइल्ड इज हियर. सो सबके अपने पैन नंबर है. और क्या हो सकता है, सबकी अपनी इनकम होगी कुछ ना कुछ, ठीक है. सब अर्निंग है, अर्निंग टर्म्स में है, तो सबकी अपनी अपनी इनकम है. नाउ टेल मी, इस टेबल को, ये दोनों ही टेबल आपकी फैमिली की हैं, तो इस टेबल को इस टेबल के साथ हम कैसे लिंक करें? हमें कैसे पता चलेगा ये जो पैन नंबर है डिफरेंट डिफरेंट वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं? ओके, तो हमारे पास एक यहाँ पे कॉमन की आएगी विच इज आधार नंबर. ओके, सो आधार नंबर, सपोज 1 2 3 4, these are the Aadhaar numbers and same Aadhaar number are given here also. Fine. So now we can relate this table with this table. Okay, this table with this table. So कैसे रिलेट कर सकते हैं? आधार नंबर 3 की ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो किसको बिलोंग करती हैं? वो इसी फैमिली के टेबल की इस डिटेल के साथ बिलोंग करेंगी. ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों आपस में लिंक हो पा रहे हैं, इनका आपस में रिलेशन है. ओके, और ये जो रिलेशन है ये किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ, हम ये रिलेशन क्यों ढूंढ पाए हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दिस आधार नंबर. ठीक है, क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है. एंड जनरली ये जो आधार नंबर है जिसके बेसिस पे हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर पाए हैं, इट इज कॉल्ड एज की. It is called as key. Now keys are of two types. One is primary key and one is foreign key. Okay. So what is primary key? Primary key is basically जो unique है. क्या आधार नंबर आपके फैमिली मेंबर्स में डिफरेंट सेम हो सकते हैं? नहीं. All आधार नंबर्स will be unique only. ठीक है, सो जो यूनिक है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की. अब आप बोलोगे ये आधार नंबर यहाँ पे एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी टेबल 2 में भी क्या ये एज अ प्राइमरी की ही वर्क करेगा? नहीं. वाई? क्योंकि टेबल 2 में ये हमारे लिए एक फॉरेन एंटिटी के जैसे वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये एंटिटी गिवन ही इसलिए है जिससे हम इसको ओरिजिनल जो हमारी ये फैमिली की टेबल थी इसके साथ रिलेट कर पाए. इस टेबल, इस एंटिटी के, इस कॉलम के होने का रीजन ही यही है, सो दैट वी कैन रिलेट इट विद दिस टेबल. ठीक है, सो ये इसलिए फॉरेन की बन जाएगी यहाँ पे. अपनी खुद की टेबल में तो ये एक प्राइमरी की है, ठीक है, लेकिन जब ये दूसरी टेबल में जाती है, क्यों जाती है? जिससे कि हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए. तो यही जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है. क्लियर? नाउ लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट्स इन द रिलेशनल डेटाबेसेस. ठीक है, सो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज टेबल. ठीक है, जो अभी हम देख रहे हैं, तो टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी होता है. ठीक है, अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले दैट टेबल्स अनदर नेम इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. नाउ टेबल में क्या क्या हो सकता है? तो टेबल कंटेन्स रो, table contains row and table contains column also. Okay, now what this row represents? It represents the individual records. जैसे आधार नंबर 3 जो था, उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे वो उस इंडिविजुअल पर्सन के वो रिकॉर्ड्स शो हो रहे थे. ओके, उन्हीं को हम एंट्रीज भी बोलते हैं. ठीक है, आधार नंबर, एड्रेस, एज, ये सब एंट्रीज थी बेसिकली. लाइक 3 सम एड्रेस हो गया एंड देन द एज, दीज ऑल आर कॉल्ड एज एंट्रीज. ओके, सो ये हो गई हमारी रो की बात. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड कॉलम, और इन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं उस टेबल का. ठीक है, सो प्रीवियस टेबल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे? हमारे पास थे आधार नंबर एंड देन एड्रेस, देन एज, देन आफ्टर दैट पैन कार्ड नंबर एंड देन अगेन आधार आईडी. सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज इनकम ऑल्सो, दे कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, आपकी फैमिली के एट्रीब्यूट्स थे वो सब. होप इट्स क्लियर. ओके, नाउ कम टू द next point, which is primary key. As I have told earlier that what is primary key? So जो लिंक कर, जो यूनिक आईडी है किसी भी टेबल की, यूनिक आईडी है, that is called as primary key.
And what was the foreign key? So the foreign key was that links to the primary key of another table. ठीक है, जो दूसरे टेबल के साथ लिंक करने में हेल्प कर रही है. That is simply called as foreign key. Now, another key concept that we have to understand about the relational database is relationships between the tables. दो tables हैं, उनके बीच में अलग अलग टाइप के relationships हो सकते हैं. अब वो कैसे कैसे होते हैं, let's have a look on that. So the first one is one-to-one relation. One-to-one relation means what? So one-to-one relation means that one row in one table is related to only one row with another table. How? See, here you can see that this person ID, okay, here it is written person ID, name and age. In other table it is passport ID, person ID, passport number. ठीक है. If we talk about, because they are saying one row, ठीक है, one row का relation किसके साथ है? Only one row with another table. So let's take this one row. So इस one row का relation दूसरी टेबल में किसी वन रो के साथ ही है, जैसे कि पर्सन आईडी 1, पर्सन आईडी 1 इधर मैच हो रहे हैं. सो ये दोनों जो रोज हैं यही आपस में मैच हो रही हैं. वन रो इज रिलेटेड टू अनदर रो. पर्सन आईडी 1 जिनका नेम एलिस है, उनकी एज 30 है, उनके पासपोर्ट आईडी 101 है, उनका पासपोर्ट नंबर A123456 है. ओके. सिमिलरली पर्सन आईडी 2 जिनका नेम बॉब है, उनकी एज 25 है, उनकी पासपोर्ट आईडी 102 एंड पासपोर्ट नंबर इज दिस. ओके. वी कैन नॉट लिंक दिस रो विथ दिस रो. Okay, we cannot say that person ID 1 जिनका नेम एलिस है, जिनकी एज 30 है, उनकी पासपोर्ट आईडी 102 है, because it is not matching here. Okay, so एक रो का रिलेशन एक रो के साथ ही होता है. It is simply called one-to-one relation. Okay, now come to another one which is called one-to-many relationship. इसको हम कह रहे हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. सो कैन यू गेस कि इसका क्या मतलब होगा? यस, इसका मतलब है कि एक रो का रिलेशन दूसरी टेबल में मल्टीपल रोज के साथ रिलेशन है. इस टेबल में एक रो का रिलेशन दूसरी टेबल में मल्टीपल रोज के साथ है रिलेशन. सी हाउ इट इज. So you can see it is a student table, okay, where is student ID 1, 2, name Alice and Bob, age 14 and 50. Now it is another table which is called course table. Okay. So कैसे है एक रो का रिलेशन दो तीन रोज के साथ? सी, स्टूडेंट आईडी 1, नेम एलिस, एज 14. ठीक है. जो नेम एलिस है, एलिस नेम की जो गर्ल है, ये मैथ्स कोर्स भी ले सकती है. ठीक है, जिसकी कोर्स आईडी ये होगी और स्टूडेंट आईडी ये है. ठीक है. सेम एलिस जो है वो साइंस भी ले रही है. ठीक है. हियर इट इज रिटन आईडी 1 मींस एलिस जो है वो साइंस भी ले रही है और जिसकी कोर्स आईडी 102 है. तो ये जो एलिस थी, इसकी जो रो थी ये वाली, ये इन दोनों रोज के साथ रिलेशन में है कि नहीं? सो वन टू मैनी. ओके. इट विल बी सिमिलरली एप्लीकेबल विद बॉब ऑल्सो. ओके. बॉब जो है अभी इसमें दिखाया गया है कि वो सिर्फ हिस्ट्री ले रहा है. हो सकता है वो फिजिक्स भी ले रहा हो या होम साइंस भी ले रहा हो और कोई सब्जेक्ट भी ले रहा हो, कंप्यूटर साइंस ले रहा हो. सो उसके पास 3 कोर्सेज हैं तो नीचे 3 रोज और होंगी. ठीक है. सो वन रो का रिलेशन हो गया विद द 3 अदर रोज. सो इट इज कॉल्ड वन टू मैनी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन टू इट. इट इज अबाउट मैनी टू मैनी. नाउ व्हाट इज दिस मैनी टू मैनी? As the name saying that many to many means many rows, एक टेबल की many rows दूसरे टेबल की many rows के साथ, बहुत सारी rows के साथ relation establish कर रही होंगी. But it is not like that. Okay, see what the main picture is. So there is one table. Okay, one table is called author table, जिसमें कोई author है. ठीक है. Author ID is given, name is given, Alice, Bob, Charlie. Okay, one more table, book table, and this table contains book ID, book title 101, 102, 103. Similarly, their book titles. Okay, can you tell me or can you suggest that is there any way to link these two tables? है कोई तरीका, कोई की मिल रही है आपको जिससे हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर सकें? No, we don't have any key. But if you see in the earlier table, you can see that
when we were talking about one to many, then you can see that there was a link. What is that link? That link was student ID. Okay, on the basis of this student ID, we were able to link these two tables. Okay, but this is not the case of this many to many. Here we don't have any common column जिसके बेस पे हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर सकें. That column is absent here. ठीक है, अब क्या करें? सो यही जो अब क्या करें है, यही हमारे वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशन को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस. तो नाउ वी हैव टू ऐड वन जंक्शन टेबल. ठीक है, उस जंक्शन टेबल में मींस इट्स अ थर्ड टेबल बेसिकली. इस थर्ड टेबल में क्या होगा? ऑथर आईडी होगी. ओके, बुक आईडी होगी. ऑथर आईडी इस टेबल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और बुक आईडी कॉलम इस टेबल के साथ कनेक्ट कर पाएगी. सी हाउ. So here is our third table. Now can you relate? Just let me erase all these things. Yeah. Now can you relate these three tables with each other? Of course. See, author ID 1, जो author ID 1 है, वो इस टेबल में इस रो में एग्जिस्ट कर रही है एंट्री. ठीक है, इस रो को हम इस टेबल में किस किस रो के साथ रिलेट कर सकते हैं? सो उसकी बुक आईडी है 101. सो हम इस रो के साथ रिलेट कर सकते हैं. जो ऑथर एलिस है, उन्होंने मशीन लर्निंग बेसिक्स आईडी 101 लिखी है. ठीक है, बट ऑथर एलिस ने ही बुक आईडी 102 भी लिखी है, तो हम इस रो के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी दैट दिस रो हैज अ रिलेशन विद दीज टू रोज. ओके, इट इज वन रो, इट इज मैनी रो. सो ये है तो वन टू मैनी रिलेशन ही, बट वी विल कॉल्ड इट एज मैनी टू मैनी. वी विल कॉल्ड इट एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. व्हाई? बिकॉज ये दोनों टेबल डायरेक्ट कोई लिंक नहीं शो कर रही है, इनका बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है. हमें एक तीसरे टेबल की, जंक्शन टेबल की जरूरत पड़ रही है इन्हें कनेक्ट करने के लिए. दैट्स व्हाई इसको हम बोल रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशन. ठीक है, सिमिलरली देयर विल बी मोर रिलेशनशिप्स फॉर ऑथर 2 एंड ऑथर 3 ऑल्सो. आई होप इट्स क्लियर. So now move to our next point. And the fifth concept of relational database is normalization. What is this normalization? So ये हमको relational database means जहाँ tables होती हैं उसमें ही देखने को मिलेगा. Basically ये process होता है to organize the data in the database to avoid what? Avoid redundancy. Now what does this redundancy means? It means there will be no repetition of data. कोई data repeat नहीं हो रहा हो. ठीक है, and ensure data integrity. What is this data integrity? So data integrity means the accuracy of the data and the consistency of the data. कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए. There should be some consistency. Okay. So अब normalization process करता क्या है? पहले तो हम एक एबनॉर्मल जो डेटा है उसको चेक कर लेते हैं. ठीक है, देन वी विल सी हाउ टू नॉर्मलाइज दैट. सो हियर यू कैन सी द टेबल A. Okay, in this table what it is there? It is having student ID. Okay, what else? Name, course ID, course name, teacher. ठीक है, now you can see that teacher Mr. Sharma. Okay, both teach maths and course ID is given, their name is given, student's name is given. Okay, now जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा दैट अबाउट द रिडंडेंसी एंड द डेटा इंटीग्रिटी, वो क्या है? सो वो है जैसे कोर्स इंफॉर्मेशन में गिवन था कि मिस्टर शर्मा मैथ्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज टेकिंग द कोर्स. Okay, that information is repeated for every student who will take that course. See, एक ही टेबल है, अभी नीचे के टेबल्स पे मत फोकस करिए, हमारे पास अभी एक ही टेबल है. ठीक है, और उस टेबल में मिस्टर शर्मा है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एलिस को मिस्टर शर्मा है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, चार्ली को फिर कहीं नीचे आ जाएगा मिस्टर शर्मा है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, किसी और को फिर मिस्टर शर्मा है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं किसी और को. तो ये जो कॉलम के डेटा है ये रिपीट हो रहे हैं आपस में, है ना, दे आर रिपीटिंग. सो इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी. ओके, नेक्स्ट क्या था? Anomaly, which is related to the integrity, which is Mr. Sharma changes his name, then you will have to update his name in every row where maths is listed. है ना? See, अगर इन्होंने अपना नेम चेंज करा या इन्होंने मैथ्स की जगह इनका मन हो गया इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है, इन्होंने चेंज कर दिया अपना, जैसे हम स्ट्रीम स्विच कर रहे हैं, उन्होंने भी मैथ्स से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? अब हम
मतलब ये तो सिर्फ 4 रोज आपको दिख रही हैं, एक्चुअल जो डेटा होता है उसमें बहुत सारी रोज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज होती है, 10,000, 20,000, 30,000, 90,000, लैक्स, इतनी रोज होती हैं। तो हम कहाँ तक जा जाके चेंज करते रहेंगे कि भाई अब मिस्टर शर्मा है वो मैथ्स नहीं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फीजिबल, राइट। नाउ अगर कोई नया स्टूडेंट फिजिक्स में एनरोल हो रहा है, कोई नया स्टूडेंट फिजिक्स में एनरोल हो रहा है, तो यहाँ तो गिवन ही नहीं है। जब तक स्टूडेंट नहीं आएगा, जब तक यहाँ उसकी आइडेंटिटी नहीं लिखी जाएगी, तब तक हम यहाँ आगे की चीजें लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है। वी कैन नॉट राइट हियर कि फिजिक्स कोर्स भी हमारे पास है, ओके। व्हाट एल्स? सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इज इफ किसी एक स्टूडेंट को हम रिमूव कर दें, सपोज हमने एलिस को रिमूव कर दिया, तो जो उसके कोर्स की इंफॉर्मेशन है वो भी रिमूव हो जाएगी। सी, हम यहाँ से एलिस को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। एलिस के रिमूव होते ही मैथ्स रिमूव, हिस्ट्री रिमूव, और ये कितने इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं हमारे पूरे कॉलेज के लिए, मैटर करते हैं, राइट। तो ये हमारी थी एबनॉर्मल टेबल, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अगर किसी एक पे कुछ हो रहा है तो बाकी सारी चीजों पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, और उस नॉर्मलाइजेशन में इस बिग टेबल को स्मॉल टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सी, नाउ वी हैव converted that big table into the small tables. One is student table, then course table, then enrollment table. ओके, सो स्टूडेंट टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी और नेम ये अलग सेपरेट करके रख लिए। कोर्स टेबल में कोर्स नेम और टीचर इनको सेपरेट करके रख लिया। ना अगर हमें फिजिक्स ऐड करना है, सो हम यहाँ सिंपली फिजिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो टीचर पढ़ाएगा उसके बारे में हम ऐड कर लेंगे। सपोज एलिस जो है वो जा रही है कॉलेज छोड़ के, तो उसको यहाँ से कट कर देंगे, पूरे इधर और इधर सब पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट। सिमिलरली अगर हमें सिर्फ इस टीचर की इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, बाकी जो डेटाज हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। और इस टेबल को और इस टेबल को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कनेक्ट? सो दीज टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ जंक्शन टेबल। सिंपल, क्योंकि इनका आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ओके। सो वी कैन लिंक देम विद द हेल्प ऑफ जंक्शन टेबल। सो इट इज ऑल अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर डेटाबेस। फाइन। नाउ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो बेसिकली ये हमारे डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करता है, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और बहुत इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, ओके। एंड देयर आर मेनी इंटरव्यूज क्वेश्चन ऑल्सो विच आई हैव कलेक्टेड, एंड दोज क्वेश्चंस आई विल either upload it on GitHub, you can solve them on your own, and if you want that I provide all the solutions to you, then you can comment that in the comment box, so that मेरे को पता चले कि आपको किस चीज़ की नीड है, ओके। पता चला मैं उस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे से वीडियो बनाऊँ एंड फिर आप लोग उसको देखें ना, then it will be a waste, okay। So you can tell me, inform me via comment box, then I will see कि interviews questions जो मैंने कलेक्ट किए हैं different places पर से, उसको मैं कैसे आपके सामने उसके solutions रख सकती हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the next chapter, and till then take care, bye bye।